Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this launch function of the Grievance Management Portal of National Commission for Scheduled Castes. I am S. Rangabhashyam. At the very outset, we welcome all the dignitaries on the dais. Shri Ravi Shankar Prasadji, Honorable Union Minister for Electronics, Information Technology and Communications. He also holds the charge of law and justice, as all of us know. Shri Ratanlal Kataria ji, Honorable Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. Shri Vijay Sampla, Honorable Chairman, National Commission for Scheduled Castes. Shri Arun Haldar, Honorable Vice Chairman of the Commission. Dr. Anju Bala, Honorable Member of the Commission. Shri Subhash Pardhi, Member of the Commission. And we also have with us Shri Ajay Prakash Sahni, Secretary, Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology. And we also have the Principal Director General of Press Information Bureau, Shri Jaideep Bhatnagar. A warm welcome to all of you. On the occasion of the 130th birth anniversary of Bharat Ratna, Dr. Bhim Rao Ambedkar today, the National Commission for Scheduled Castes, in partnership with the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Electronics and Information Technology, is launching a grievance management portal to enable people of scheduled castes to register their complaints and grievances from any part of the country. This will be in addition to the existing modes of registering complaints. Ladies and gentlemen, to give us a greater understanding of the new grievance redressal portal, I would now request Shri Vinay Thakur of Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformatics, BISAG-N as it's popularly called, of Gandhinagar, Gujarat, to give us an introduction. Mr. Thakur, please. Very good afternoon. Honorable Minister for Electronics and IT, Communication, Law and Justice, Honorable MOS, Social Justice and Empowerment, Honorable Chairperson NCSE, Honorable Vice Chairperson NCSE, Honorable Members Vasar, Dr. Anju Bala Ma'am, Respected Secretary, Ministry of Electronics and IT, Respected Secretary, NCSE, CEO NEGD, Director General Bhaskaracharya Institute, who is attending it through video conferencing, senior officers of NCSE, esteemed member from media, and ladies and gentlemen. I will be giving the brief about this system which is being launched today, the processes, the features which have been included as part of this. So this is an online mechanism for filing the complaints, which are promptly acknowledged through a unique UCN number, unique complaint number for future references. There is a provision of monitoring and easy tracking, as well as efficient and time-bound processing of complaints and redressal. Right now, sir, we have 3 modes through which the complaint can be filed. This is an online portal which is also mobile responsive. We have also made a provision of facilitation center at NCSE, state offices of NCSEs, and I was told that common service centers which are located in rural areas, around 4 lakh of them will also be used for where people can go and then file the complaint, which can be uploaded to this online system, which is coming in person, post, email, or some issues being reported in social media or newspaper. Sir, the user registration is user registration and entire process of filing the complaint is very simple. Honorable Commission wanted to keep it a minimum in terms of key punching or data entry, so that is how it has been designed. So complainant has to register with his name, mobile number and email address, and he can set his password. So that is a registration process. It is available right now in Hindi and English. And once that is done, user can log in with his email or mobile number, he gets an OTP and he gets into the system. So it is kept very simple. And once he is into the system, he can file a complaint. He can see the status of his complaint, and then FAQs and then chatbot is also built into the system, sir.
The filing the complaint, the registered user, in some cases probably now it will be CSC also, so they can file for themselves or they can file it for others also. Here also we have kept a minimum provision of it, the details of the aggrieved person, address. Here also we are trying to hook everything through PIN number, so you put a PIN number and other locations will be filled automatically. And the type of complaints, whether it is atrocity or it is related to service matter or other economic matters. And there is a provision that it can be entered in any Indian languages. We have right on the top, we are prompting to use editor, a plugin for making the editing in any of the Indian languages. Complainant can also upload the video file, audio files. He can also provide a link in case some matter is available in YouTube or any digital medium, so that link can also be provided as part of this. And after filing this, there is a unique UCN number which will be generated for future reference, and that number will also be sent on SMS and email for future reference. And once it is filed, nodal officer will get alert, and then immediate action will be initiated in the commission. Sir, the entire workflow is is taken care in the system, directed to Honorable Chairman or Commission for further direction, then forwarding to department, ministries and states, and then cause list and hearing workflow is also part of this. And status can be checked at any point. It is available on the home page of the portal as well as inside also with login, where one can track his status with name of victim, any of these filters. It is not that multiple filters, any of these filters, complaint number, mobile number, email address. There is a provision also for analytics from to this date, how many cases state-wise and district-wise. So this is the status tracking, and not only the status tracking, it will show you entire flow. If there is a notice, then notice can also be seen on this flow. So it is not the latest status, but the entire flow in that hierarchy will be available to the users. And at the commission level, sir, there will be a dashboard showing us how many complaints are under process, how many have been resolved related to atrocity, service matters, social and economic matters, and how many complaints are under hearing. In pipeline, we are also working on mobile app, which will be available shortly, both in Android and iOS. There will be support in level for all Indian languages. We are also integrating the portal with video conferencing for online hearing of the complaints. And then GIS-based analytics, which is very, very important and forte of Bhaskaracharya Institute. We will be providing a GIS-based analytics also, showing the locations, showing the heat map, what type of complaints are coming from which area. So that will also be the part of this mapping system, which is under development for this portal. At the end of it, on behalf of my ministry, I would like to thank all the dignitaries on the dais, MOS Social Justice, very enthusiastic commission which has been guiding us all these days. Almost every week we used to meet, and they have been guiding us on this. And also would like to thank Honorable Minister of Electronics and IT, Communication Law and Justice for his constant guidance and encouragement and direction. He has directed us that anyone from any government agency or department or state government, in case they require any support in terms of technology, in terms of ICT for development or any other thing, we have to provide that support with a sole goal to make the lives of Indian citizens easy and hassle-free. This program is also live on Facebook and YouTube right now, and is also being going through DG channel, DG Shala channel of Ministry of Electronics and IT, TV channel of Ministry of Electronics and IT. That is all from my side. Thank you. Thank you, Mr. Vinay Thakur, for that brief introduction about the portal. Now, I would request Secretary to Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, Shri Ajay Prakash Sahni, to address the gathering. Mr. Sahni, please. Respected Honorable Minister for Electronics and IT, Communications, Law and Justice,
Shri Ravi Shankar Prasad ji, respected Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Ratan Lal Kataria ji, respected Shri Vijay Sampla ji, Honorable Chairperson, National Commission for Scheduled Castes, Shri Arun Haldar ji, Vice Chairman, Shri Subhash Pardhi ji, Dr. Anjubala ji, my colleague Shri Sushil Kumar ji, Secretary NCSC, Abhishek Singh ji, TP Singh ji, who is participating as DG by SAG from Gandhinagar, Vinay Thakur ji, other distinguished colleagues, members of the media and friends. आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ, और वो भी भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 130th बर्थ एनिवर्सरी के रोज़ कि ये पोर्टल इकट्ठे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने बनाया है, हमारे साथ में मिलकर उसका लॉन्च किया जा रहा है। और डिजिटल इंडिया में हमारी तरफ से कोशिश रही है कि जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी संस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स से, आईटी से कुछ आगे काम बढ़ाना है, लोगों के लिए सुविधा बनानी है, स्पेशली कंप्लेंट्स फाइलिंग के लिए, सर्विस के रिक्वेस्ट्स दाखिल करने के लिए, उन सब में हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, राज्य सरकारों का, संस्थाओं का, सभी के साथ चलकर ये काम करने में सक्षम हो। और पिछले कुछ वर्षों में करीबन हर एक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, संस्था, सभी का काम ऑनलाइन हो गया है। और आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जो ये काम किया गया एक पोर्टल बनाने का, इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी, अपने कंप्लेंट्स आसानी से दाखिल कर पाएँ। एक बात पर मैं खास मेंशन करना चाहूँगा, एक बात का, कि कॉमन सर्विस सेंटर्स एक बहुत ही बढ़िया हमारी तरफ से एक संस्था है, जो करीबन 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स आज के दिन भारत में काम कर रहे हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स 2.51 लाख ग्राम पंचायत में आज के दिन एक या एक से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत 2.5 लाख नहीं, 2.58 लाख ग्राम पंचायत हैं, और अभी भी 7,000 ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर्स आने बाकी हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति ऑलमोस्ट किसी भी ग्राम पंचायत में देश में अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, अपने पास में उसी ग्राम पंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना कंप्लेंट, अपना रिक्वेस्ट वहाँ से फाइल कर सकता है। और इस पोर्टल से ये सुविधा भी सभी को मिल पाएगी। तो इसके अलावा ये वाला काम जो इस बार किया गया, ये बाइसैग एन के हाथों किया गया है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट राज्य सरकार का एक इंस्टीट्यूशन था, जो कि सैटेलाइट इमेजरी से जो जियोस्पेशल इमेजिंग होता है, उसको सरकार के कामों में, लोगों के काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें वो एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है। उसको हाल ही में एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया, उस इंस्टीट्यूशन का काम देखते हुए। गुजरात में जहां उन्होंने बहुत
सालों से काम किया हुआ है, वहाँ 600 से ज़्यादा लेयर्स, जियोस्पेशल मैप के ऊपर लेयर्स, चाहे वो रोड्स का हो, रेलवेज़ का हो, या वाटर बॉडीज़ का हो, विलेजेस का हो, हर तरह के 600 से ज़्यादा लेयर्स गुजरात में उन्होंने काम करके बनाए हैं। और देश भर में 300 से ज़्यादा लेयर्स का काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और यहाँ पर जो कंप्लेंट्स आएंगे, जो भी इस पोर्टल के द्वारा काम होगा, उसको नक्शे के ऊपर देखकर ये आसानी से समझा जा सकेगा कि कहाँ पर किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। और कुछ अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट के अलावा अगर कोई सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसकी भी सहूलियत इस पोर्टल के द्वारा मिलेगी। ये हर एक पोर्टल में नहीं ये सुविधा होती, बट बाइसैग-N द्वारा तैयार जो पोर्टल्स होते हैं उसमें खास नक्शे का जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा पावरफुल फीचर होता है, और उसकी तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। Finally, I would like to close with one very relevant quote from the father of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar ji. I quote, "Ours is a struggle not for money or power, but for the reclamation of human dignity." और इसी भावना से हमें इस तरह के मेजर्स लेते रहना है जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और हमारे देश को, देश के सभी देशवासियों की आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, और तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो, प्रोग्रेस भी हो, और सभी के लिए हो, ना केवल कुछ लोगों के लिए। इस इनिशिएटिव को लेने के लिए मेरी तरफ से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स को, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न को और बाइसैग-N को और इसमें शामिल सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Mr. Sahni, thank you so much for those introductory remarks and putting things in perspective. अब मैं माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप इससे पहले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। मंचासीन माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय के मंत्री, उनके साथ विराजमान श्री रतनलाल कटारिया जी, जो राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता और साथ में जल शक्ति का भी राज्य मंत्री के दायित्व निभा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन श्री अरुण हल्दर जी, साथ में सहयोगी सदस्य अंजू बाला जी और सुभाष रामनाथ पारधी जी, और सचिव हमारे सुशील कुमार जी, आईटी के सचिव हमारे अजय कुमार साहनी जी, टीपी सिंह जी, और हमारे सभी अनुसूचित जाति आयोग के उपस्थित अधिकारीगण व मीडिया से जुड़े प्रेस के मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज भारत के संविधान के निर्माता और भारत रत्न, जिन्होंने सामाजिक चेतना लाए, समाज सुधारक के रूप में भी जानते हैं, हम उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में, जिन्होंने बहुत बड़ी देश में क्रांति लाई, ऐसे हमारे जिन्हें हम
आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज 130वीं जयंती है। इस शुभ अवसर पर हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कि ये एक बढ़ता हुआ कदम उनको स्मरण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए आज हम उस पोर्टल का लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका अभी विनय ठाकुर जी जो विसाग से अभी उसको बता के भी गए, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी बहुत महसूस की जा रही थी। और जिस दिन मैंने अपना ये कार्यभार संभाला था तो मीडिया के मित्रों ने उसी दिन मुझे पूछा था कि आपके लिए चुनौती क्या है। तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती मैंने रूप में यही कहा था कि आज के आधुनिक युग में जहां प्रधानमंत्री जी का एक विज़न पूरे देश में प्रौद्योगिक इस आईटी को विकसित करने में लगा है और माननीय मंत्री जी का विभाग इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए और कार्य को और गति देने के लिए लगा है, तो उसमें देश की सबसे बड़ी ज़रूरत आज आईटी की है। और उसमें सबसे आसान तरीका भी यही है कि इसलिए कहीं दूर दराज बैठे गरीब को आने जाने की सुविधा जहां नहीं होगी वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो सके। और इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहला मेरा चैलेंज भी यही रहेगा कि हम इसका एक पोर्टल तैयार करेंगे ताकि देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इसका उपयोग करके अपने अन्याय के खिलाफ लड़ता हुआ न्याय की गुहार ना लगाए, न्याय लेने तक पहुँचे। इसलिए हमने आज के इस पोर्टल का जो विधिवत, जिसका मंत्री जी अभी आपको समर्पित पूरे देश को करेंगे, उसके लिए आज प्रयास किया है। और इसके लिए मैं धन्यवाद अपने सारे स्टाफ को भी दूंगा और विशेष रूप से हमारे सचिव सुशील कुमार जी का, जिन्होंने ये विसाग के साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ ये सारी बातें पहुंचाकर इसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण इसको सहयोग दिया। हमारे स्टाफ में चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हों, चाहे डायरेक्टर हों, एसओ हों, सभी ने पूरा सहयोग देकर इतने कम समय में भी, क्योंकि पहले तो आते हुए यही सोचते थे कि इसको पूर्ण कैसे करेंगे, मगर अधिकारियों के ये सबसे संपर्क के कारण ये बहुत जल्दी हम इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी अपने विभाग के साथियों को मैं धन्यवाद भी दूंगा। और आज पूरा देश जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस समरसता के रूप में, कि माननीय अटल जी ने इसे समरसता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था, और पूरा देश इस डॉक्टर अम्बेडकर जी को जन्म दिवस को हम समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी प्रख्याति इतनी हुई है कि आज विदेशों में भी इसका स्मरण हो रहा है। और आज ही किसी मेरे मित्र ने मुझे न्यूज़ की कटिंग दी है कि ब्रिटिश कोलंबिया में भी आज के दिवस को इक्वलिटी डेज के रूप में आज घोषित किया है। और मुझे ये खुशी हुई है कि भारत सरकार के प्रयासों को आज पूरे देश विदेश में भी प्रख्याति मिल रही है। साथियों, ये जैसे कि विनय ठाकुर जी इस पोर्टल के बारे में पूरी तरह से बता के गए, मगर मैं ये भी यहाँ पर बधाई भी दूंगा विसाग को भी, उनके सभी सहयोगियों को भी। इसमें विशेषता भी रही है क्योंकि इसको बनाने से पहले हमने बहुत सारी दूसरी, चाहे वो ह्यूमन राइट की कमीशन की ग्रीवेंसेस की पोर्टल है, पीएमओ के, सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ उनसे प्रेरणा भी लिया और कुछ हमने तब्दीलियां भी की। और इसमें विशेष रूप से एक जो आज तक किसी भी ग्रीवेंसेस पोर्टल में नहीं होगा, कि नहीं देखा होगा, वो है कि कहीं भी कोई ऑडियो की तौर पे फाइल अटैच नहीं की जा सकती थी। पहले फाइल या फ़ोटो अटैच की जा सकती थी और इसमें ऑडियो की क्लिपिंग भी अटैच की जा सकती है। वो कंप्लेंट के रूप में भी हो सकती है, वो एविडेंस के रूप में भी हो सकती है।
किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग होगी तो वो एविडेंस के रूप में भी दे सकते हैं। और इसमें जो आज तक और भी कहीं नहीं देखा होगा कि वीडियो की कभी नहीं देखी होगी, इसमें जहाँ वीडियो की क्लिपिंग भी अपलोड हो सकती है और इसमें वो ग्रीवेंसेस के रूप में भी है, एविडेंस के रूप में। किसी भी न्यूज़ की कटिंग चलती है, कहीं वो दुर्घटनाएं घटती हैं तो उसकी, चाहे वो सीसीटीवी की होती हैं, तो इमीडिएटली, क्योंकि कमीशन को काम करते हुए कई बार एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो उस एविडेंस में बहुत सारा समय नष्ट होता है। इसमें वो समय भी नष्ट होगा जो होने से बचेगा। और जो हम देख रहे थे, मुझे 1.5-2 महीने में बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी कि मेरा इतनी देर से मैंने अपनी कंप्लेंट दी है, उसका कुछ नहीं हुआ। अगर उसको, क्योंकि फाइल का उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता, तो हमारे लिए ढूंढना भी मुश्किल था। मगर अब जब ये पोर्टल पे जाएगा तो इस फाइल का नंबर उसको अपने आप जनरेट हो जाएगा, उसके पास फाइल भी रहेगी, वो क्वेरी भी करता रहेगा और उसमें समय समय उसको कुछ कहना होगा वो भी करता रहेगा। और फाइल के ऊपर कब क्या हुआ ये जानकारी उसको पूछने की बजाय उसको घर बैठे मिलेगी। और ये भी हम करने जा रहे हैं कि जैसे इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की है और इस पोर्टल को हम उनसे भी जोड़ना चाहेंगे की बात की गई है कि जब जोड़ेंगे ताकि बहुत सारे के लोगों के पास सुविधा नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है या किसी के पास कंप्यूटर ऑपरेट ही करने की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हमने वो सुविधा सेंटर जो कॉमन सर्विस सेंटर है उससे भी नॉमिनल फीस जो वो चार्ज करेंगे उसके साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। सो एक तरीके से देखें कि आज की आधुनिक समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को पूरी तरह से कंप्लीट किया। कंप्लीट तो कभी वैसे कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि आगे आगे समय से और चीज़ें बढ़ेंगी, इसमें और भी ज़रूरत जो पड़ेंगी वो भी करेंगे। और इसको जैसा कि ठाकुर जी ने बताया कि इसका जल्द ही हम पोर्टल एप्पल ऐप जो मोबाइल ऐप भी जारी करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एंड्रॉयड तो आप सब जानते हैं जल्दी हो जाता है, उसमें iOS की थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए वो अगले 2 हफ्ते तक वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम और लोगों तक सभी के मोबाइल में ऐप चले जाएगी और उस सभी को ऑपरेशन ज़रा और आसान होगा। सो इसमें जितना भी इसको आसान करने की कोशिश की और लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये सभी गांव तक ये प्रचार पहुंचेगा और लोगों में इसको इस्तेमाल करने के लिए आगे आना जो है वो सुविधा उसकी आने के लिए मिलेगी। और मैं, क्योंकि समय का अभाव भी है, मैं इसलिए सरकार में जिस तरह से आगे इसको महत्वपूर्ण कदम को हम जैसे समझते हैं कि सरकार की वैसे भी इच्छा है कि भी सरकार को जवाब दे और रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल बनाया जाए। और इस माध्यम के लिए ये आज का डिजिटल जो हमारा पोर्टल है ये बहुत बड़ा काम करेगा और इसका नाम भी हमने NCSC ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट पोर्टल रखा, ताकि उसका प्रबंधन ठीक से होगा। और इसके लिए हमारा एक नोडल अधिकारी भी इसको समय समय पर मॉनिटरिंग भी करेगा और संबंधित अधिकारियों को उसकी जांच के लिए वो भेजता रहेगा। और जैसे ही कुछ भी जानकारी आएगी वो एक डायरेक्टर लेवल का ही आदमी इसका जवाब देगा और वही नोडल अफसर से माध्यम से होते हुए उस कंप्लेंटेंट तक पहुंचेगा। ये भी सुविधा हमने इसमें रखी है। सो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका विज़न इस विषय में बहुत हम देख रहे हैं कि 5 साल में बहुत तरक्की की IT सेक्टर में, उनके नेतृत्व में और मंत्री जी के कार्यशैली को, उनके विभाग को देखते हुए हम जानते हैं कि पिछले 5 साल पिछली सरकार में हम साथ भी रहे। मैं भी एक मंत्री के रूप में इनके सहयोगी रहा हूं कि सारा काम डिजिटल का मतलब है कि आसान से लोगों तक पहुंच करके हुए आसानी से सुविधा देते रहें और उनमें पूरा विभाग इनका लगा है। और अजय जी बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ बताया भी हमें। और साथ में मैं अंत में सभी का धन्यवाद भी दूंगा कि विशेष रूप से
हमारे मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी का, जिनके मंत्रालय के सहयोग से ही, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता था, और उनके अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा मंत्री जी के, कि जिन्होंने बहुत बड़ा एक कदम आगे बढ़ाने में, अनुसूचित जाति आयोग को एक नई पहचान देने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमें आशीर्वाद के रूप में सहयोग दिया है। हम पूरा हमारा आयोग उनके लिए धन्यवाद और ऋणी है। और साथ ही मैं जो धन्यवाद विशाख को भी दूंगा, जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके एक बहुत अच्छा सुंदर पोर्टल बनाकर हम सबको समर्पित किया है, और इसको कैसे ऑपरेट करना है अभी उन्होंने ये भी बताया है। और साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हमारे रतनलाल कटारिया जी, जिनका मंत्रालय अनुसूचित जाति के लिए काम करता है, उनकी बहुत सारी योजनाएं बनाता है, और उसमें हमारा कमीशन को भी काफ़ी महत्वपूर्ण उनका समर्थन हमें मिलता है। इसके लिए उनके कार्यशैली के लिए उनको सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबके इस प्यार से ये पोर्टल आगे बढ़ता रहेगा। अंत में मैं सभी अपने सहयोगियों का, अपने विभाग आयोग के सभी अधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और आशा भी करूंगा कि ऐसा सहयोग मेरे आयोग के सभी अधिकारी करते हुए इस आयोग को नई पहचान और नई व सुंदर पहचान देने में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। और अब मैं राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय श्री रतनलाल कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि अपने सुविचार हमारे समक्ष रखें। परम आदरणीय श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, सूचना प्रौद्योगिक कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार, आज हमारे लिए ये बड़ा गौरव का विषय है, और एक संयोग की भी बात है कि आज जिस महान व्यक्तित्व का 130वां जन्म दिवस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज हम मना रहे हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिस मंत्रालय को बाबा साहब जी ने स्वतंत्र भारत में सुशोभित किया, आज उस मंत्रालय के मंत्री हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम में हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे आदरणीय विजय सांपला जी इस बात का वर्णन कर रहे थे कि इस पोर्टल की सफलता में हमारे प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ हमारे पोर्टल के लिए नहीं, कमीशन के लिए, बल्कि जो हमारा सारा मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसमें हमारा कमीशन भी आ जाता है। और जिस विभाग को हम गहराई से इसमें कमीशन में देखते हैं, एट्रोसिटीज के विषय को, जब तक रविशंकर जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें इनकी आवश्यकता है।
और पिछले, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं, मंत्री के रूप में भी पिछले 20 सालों में जब जब सरकार बनी है तब से आप मंत्री रहे हैं। और हमारे समाज के सामने जब भी कोई ऐसे अवरोध खड़े हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए, चाहे वो किसी ने खड़े किए, मोदी जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से आप चट्टान की तरह हमारे समाज के पीछे खड़े रहे। और उन सभी जो भी हमारे रास्ते में बाधाएं आई, उन्होंने हमारी बाधाओं को दूर किया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय सांपला जी, हमारे सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सचिव संचार सूचना प्रौद्योगिकी, हमारे आदरणीय श्रीमान सुशील कुमार जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय सुभाष जी, बहन अंजू बाला जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के शुभारंभ पर उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में अत्यंत गर्व का क्षण है। बाबा साहब एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारत के संविधान का निर्माण करने में प्रमुख सूत्रधार थे। उन्होंने भारत की अनुसूचित जातियों जैसे अधिकारहीन समुदायों की दबी हुई आकांक्षाओं को संबोधित करने वाला एक प्रस्तुत प्रतिदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए देश और इसके नागरिकों को सामाजिक समता, समावेशिता, गैर भेदभावपूर्ण संस्कृति का मार्ग दिखाया था। मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस मार्ग पर चलने का अवसर मिला है। मैं यहाँ एक ऐसे मंत्रालय की ओर से उपस्थित हुआ हूँ जो वर्षों से वंचित और दलित वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मौजूदा सरकार नागरिकों की शिकायतों का एक ऐसी रीति में समयबद्ध तरीके से समाधान करने पर अत्यधिक बल देती है जिससे सरकार का प्रतिक्रिया समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। केवल तभी समाज और सरकार को लोगों, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों की आवश्यकताओं के लिए वास्तव में समावेशी और जिम्मेवार कहा जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ऐसी प्रणाली को स्थापित करने का निरंतर प्रयास रहा है जो देश के अधिकारहीन और दलित वर्गों के सशक्तिकरण में मदद करती है। मैं इस कार्यक्रम को एक ऐसे समाज जहां प्रत्येक नागरिक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रह सकता है कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक छोटे से कदम के रूप में देखता हूं। वेब आधारित यह पोर्टल प्लेटफॉर्म सरकार को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों जो शताब्दियों से अन्याय और बहिष्कार से प्रताड़ित होती रही हैं के प्रति अन्याय, भेदभाव और असमता के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का सक्रिय साधन बनाने के लिए अंबेडकर जी के विजन को साकार करता है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति के वर्गों की शिकायतों को न केवल शीघ्रता से दर्ज और स्वीकृत किया जाए बल्कि इन शिकायतों की आगे भी निगरानी की जाए और उनकी स्थिति का
पता भी लगाया जाए ताकि सही तरीके से दर्ज की गई शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से पूरा किया जा सके। न केवल पूरी प्रक्रिया को शिकायतकर्ता द्वारा देखा जा सके, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी हर समय उपलब्ध रहे। भारत सरकार डिजिटल कार्यक्रम के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी में सुधार के लिए आम जनता के आवेदनों और शिकायतों को संबोधित करने हेतु प्रौद्योगिक आधारित समाधानों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मैं श्री रविशंकर जी, माननीय आईटी मिनिस्टर, विधि एवं न्याय मंत्री को हमारे डिजिटल बनाने और डिजिटल भारत के सपने का एक महत्वपूर्ण भाग बनाने के प्रयास में सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी को भी आयोग के संबंध में उनके विजन के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस प्रकार के कुशल ऑनलाइन तंत्र जो प्रणाली को गरीब लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए जिम्मेदार बनाएगा, इसके विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की टीम द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करता हूं। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट के इंटरफेस के सौंदर्यीकरण के लिए भी टीम की सराहना करता हूं। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, प्रौद्योगिकी मंत्रालय की टीमों को समाज के अत्यंत निचले वर्ग को संबोधित करने के लिए अब तक किए गए कठिन परिश्रम तथा इसे विश्व में सर्वोत्तम बनाने के लिए आगे किए जाने वाले परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि यह पोर्टल अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में इससे लगभग 22 करोड़ लोगों का जीवन बदल जाएगा और इतने लोगों के जीवन एवं भाग्य को बदलना कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी तथा बाबा साहब की जयंती इस पोर्टल का शुभारंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। नमस्कार। जय हिंद। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। Ladies and gentlemen, we'll now be launching the Grievance Management Portal, and for this, may I request Honorable Union Minister for Communications, Electronics and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad ji, to formally launch the Grievance Management Portal by pressing the button of the remote. National Commission for Scheduled Castes was set up under the Article 338 of the Indian Constitution to investigate and monitor all matters relating to the safeguards of scheduled castes under any law for the time being in force or under any order of the government, and to evaluate the working of such safeguards and to inquire into specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguards of the scheduled castes. Existing system of filing the complaints by aggrieved citizens had to be done by either sending applications via post or by visiting their respective state offices or New Delhi headquarters for filing their complaint. The NCSC Grievance Management Portal launched today is intended to enable people from scheduled castes to file their complaint online and get them addressed. However, offline processes are still available to the public, but this portal not only makes it easier for a complainant traveling from afar,
but is also a safer option considering the COVID-19 pandemic situation in the country. NCSC Grievance Management Portal will facilitate aggrieved persons from the scheduled castes to file complaints by first registering themselves for filing their complaint about any incident of atrocity or complaints related to service matter and social and economic matters, etc., in an easy as well as safe manner. The portal is available in English and Hindi languages. However, users can upload their complaint in any Indian language. The portal ensures that grievances are registered and acknowledged promptly through a unique file identification number for future reference. A complainant has the option to upload the audio and video file as well. Apart from bringing in ease of usage to the users, the inbuilt robust e-filing system will enable the Commission to ensure compliance of legal and other safeguards against the exploitation of scheduled castes, take necessary actions and resolve issues within stipulated timeframes, and meet the constitutional mandate in a more effective manner. I would now request Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji to share his thoughts with us on this occasion. भारत सरकार के सम्मानीय राज्य मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री विजय सापला जी, उपाध्यक्ष श्री अरुण हल्दर जी, सदस्य अंजू बाला जी, सुभाष रामनाथ पादी जी, मेरे विभाग के सचिव श्री अजय साहनी जी, सुशील कुमार जी, अभिषेक सिंह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शिकायत करने की परंपरा आयोग में डिजिटल हो रही है। यही तो है डिजिटल इंडिया। सब कुछ जब डिजिटल होता है तो डिजिटल इंडिया की सफलता का एक और मील का पत्थर आता है। और बहुत ही ये स्वाभाविक है कि आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, इसलिए इस अवसर पर सांपला जी ने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। डॉक्टर अंबेडकर को मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही मेरी इज्जत उनके प्रति बढ़ती है। हम लोग कहते हैं बार बार कि संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कुछ लोग कहते हैं इसलिए कि वो दलित वर्ग से आते थे। कभी एक बात नहीं भूलना चाहिए कि उनको संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया कि उस समय वो भारत के सबसे योग्य संविधान विशेषज्ञ थे। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे याद है कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पैम्फलेट मैंने पढ़ा, मुंबई में पढ़ते थे, नो प्यून नो वाटर। क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे तो बाकी सब तो घड़े में पानी पीते थे, और जितने उनके वर्ग के बच्चे आते थे उनके लिए चपरासी 2 बार बाहर पंक्ति बैठा करके बाल्टी से पानी गिराता था। उस दिन वो छुट्टी पर था तो प्यासे रह गए। आप कभी कल्पना करिए कि इतनी पीड़ा और विषमता से अपने को उसमें डालना चाहिए। क्योंकि मैं जब पटना में वकालत करता था सांपला जी, तो मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बना था पार्टी में दोबारा सक्रिय होने के पहले, विद्यार्थी परिषद के बाद। और मैंने उस विषमता को जमीन पर देखा है। मैंने जाकर अभी जो हमारे रतलाल जी मुझे मेरे बारे में बोल रहे थे, तो मेरे अंदर ये जो एक भावना है वो बहुत दिनों से है, जब मैंने देखा है उनकी विषमताओं को। और उन्होंने क्या सपना देखा कि हमें संवैधानिक तरीके से भारत को बनाना है और अपने लिए सम्मान पाना है। वी हैव टू इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और उस संविधान की
3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फ्रीडम भी है, लिबर्टी भी है, लेकिन इक्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता मजबूत नहीं होगी। और अगर हिंदुस्तान के आम नागरिक को एम्पावर करना है तो विषमता को समाप्त करना जरूरी है। ये जो भारत के संविधान की बहुत बड़ी सोच है ना, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि रतनलाल जी आप और आपका विभाग और सापला जी आपका विभाग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन, उनका संघर्ष और उनके संकल्प को बताना चाहिए देश की आने वाली पीढ़ी को कि वो समझें। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भारत को बहुत समझते थे। अगर आप देखें मौलिक अधिकार को, क्योंकि आज का अवसर है, मुझे लगा कि मैं अपने इस विचारों को आपके सामने साझा करूं, तो उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं सबों को पढ़ाई के लिए भी रिजर्वेशन दिया, नौकरी का भी रिजर्वेशन दिया, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ एसटी एससी को दिया। मतलब विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए आरक्षण किया। तो अगर हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो हमें उनके लिए यह भी आरक्षण देना पड़ेगा। और 2 मूल सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको इसलिए आरक्षण दिया कि उनको वन से निकाल कर समाज के मुख्य धारा में लाना था। और जो हमारे दलित भाई हैं, उनको आरक्षण समान इसलिए दिया कि उनके साथ जो हजारों साल की विषमता थी उसको समाप्त करना था। और संविधान के निर्माण करने वाले बड़े बहुत महान लोग थे, बाबा साहब, डॉक्टर पटेल, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। उनकी समझदारी थी भारत के भविष्य के बारे में। लेकिन उन्होंने ये पाया कि यह विषमता हिंदू समाज की कुरीति है, दलितों के साथ हुई। इसीलिए जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 बना, उसमें जिसमें हर स्टेट में कौन कौन शेड्यूल कास्ट होगा उसको उसी के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें लिखा है दिस शैल बी एप्लीकेबल टू दोज हु आर हिंदूज। और बाद में उसमें सिख और बुद्धिस्ट जोड़ा, जो संविधान में भी प्रावधान है। इसलिए आजकल जब मैं दलित और मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम की बात सुनता हूं तो मेरे अंदर एक कौतूहल पैदा होता है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके समाज में भी यह विषमता हुई है हजारों साल से, उसे स्वीकारना पड़ेगा। हिंदू समाज के लोगों ने स्वीकारा और संविधान बनाने वालों ने स्वीकारा कि हमारे यहां विषमता हुई है, उसका हमें संवैधानिक उत्तर देना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल समझदारी और संवैधानिक समझदारी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मानता हूं कि आजाद भारत में 3 नाइंसाफी हुई है, और ये मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। भारत को बनाने वाले हर विचारधारा के लोग रहे, उनकी सोच रही है। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो भारत कहां होता? 565 रियासतों में या 66 में सरदार पटेल 565 को हैंडल कर रहे थे, कोई समस्या नहीं है। नेहरू जी एक को हैंडल कर रहे थे, कश्मीर को, समस्या थी, अभी कुछ दिन पहले खत्म हुई है। अब जब भारत अगले साल 75 ईयर्स होगा तो भारत की नई जनरेशन्स को भारत के इतिहास को ऑब्जेक्टिवली समझने का अवसर देना चाहिए। तुम तय करो किसने सही किया, किसने गलत किया। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। ये कैसी नाइंसाफी है भाई? ही वॉज द प्राउड ज्यूअल ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर मरे 1956 में, उनको मिला भारत रत्न 1989 में। क्यों भाई? उससे बड़ा कोई भारत रत्न हो सकता है क्या? और मौलाना आजाद मरे 1959 में और उनको मिला भारत रत्न 1992 में। अब 89 में किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और 1992 में कौन प्रधानमंत्री थे, ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
शायद अगर परिवार के प्रधानमंत्री हुए होते तो ये काम भी आगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को करना पड़ा, तो लोकनायक जयप्रकाश जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। मुझे लगा कि सापला जी, आज का दिन, ये मेरे मन की पीड़ा थी, इसको मैं शेयर करूं इस मंच से। इसलिए भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी, वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं हमेशा कहूंगा कि उस आंदोलन के माध्यम से हमारे देश के दलित समाज को जो अवसर मिला है, जैसे वो आगे आए हैं, उससे बहुत संतोष होता है। चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिक्स में हो, बाकी हो, और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत काम हो रहा है। मैंने आपसे कहा सापला जी, कैसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने मिलिंद कामले की चर्चा की आपसे, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी कहानी क्या है, बहुत रोचक है। वो जूनियर इंजीनियर थे, रिजर्व कोटा से आए थे, तो कंस्ट्रक्शन काम में सैकड़ों करोड़ पेमेंट करते थे। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं भी कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। कहा तुम पागल हो, 22 साल में इंजीनियर बन गए हो, चीफ इंजीनियर बन जाओगे। पिताजी शिक्षक थे, बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने एक दिन रिजाइन कर दिया। पिताजी ने कहा गेट आउट, तो मेरे बड़े बेटे हो, ये सब करते हो, बाहर चले गए। तो मैंने उनसे पूछा, वो पद्मश्री हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप वापस घर कैसे लौटे। कहा जिस दिन मेरा टर्नओवर 100 करोड़ हो गया तो मैं अपने मर्सिडीज बेंज गाड़ी में पिताजी से मिलने गया कि पिताजी बिना रिजर्वेशन के देखिए मैं कहाँ पहुँच गया। उसके बाद उन्होंने बनाया दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसमें जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो आगे बढ़ाते हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ। आज देश के ऐसे आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो रतनलाल जी और सापला जी, आप लोग दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को स्थान मिलना चाहिए। अच्छी बात है आज का ये पोर्टल बना है। देखिए, आपने मेरे विभाग को, मुझे, मेरे पदाधिकारियों को बहुत अच्छी उद्गार प्रकट किया, आपका धन्यवाद। ये समझना चाहिए कि डिजिटल इंडिया क्या है, और बहुत संक्षेप में मैं डिजिटल इंडिया के कुछ प्रमुख लक्षणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक संकल्प दिया था कि अगर देश की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्लस इंडियाज टैलेंट IT इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। ये बनाना है हमें। और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा महायज्ञ वो मेरे कंधों पर सौंप देंगे IT मंत्री के रूप में। आज देखिए देश को हमने कैसे बदला। इस देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन है, लगभग 128 करोड़ आधार कार्ड है, हमने जोड़ा, दोनों को लिंक किया। लगभग 40 करोड़ हमने गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट में। और आपको मैं आज मित्रों को, पत्रकार मित्रों को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक विभिन्न सरकार, लगभग 400 केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं में अब तक 14,72,214 करोड़ रुपया भेजा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लगभग 13 लाख लाभार्थी इसके हैं, 13 लाख करोड़, क्षमा करेंगे आप। और कितना हमने बचाया है? 1,78,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो डिजिटल इंडिया से क्या ईमानदारी होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया, हमारे विभाग के लोगों ने उसकी परिभाषा बहुत टेक्नोलॉजी पूर्ण बनाई थी। हमने कहा नहीं, इसकी सरल भाषा, तो भाषा सापला जी मैंने खुद बनाई। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, एंड नंबर 3, ब्रिंग इन डिजिटल इंक्लूजन। एक समावेशी डिजिटल भारत हमें बनाना है।
जहां डिजिटल डिवाइड को हमें पाटना है। और ये सब होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से जो भारत में बनी हो, सस्ती हो। आज देखिए आधार भारत के टेक्नोलॉजी के लोगों ने बनाया, मेरा विभाग देखता है उसको। ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GSTN भारत के टेक्नोलॉजी के बच्चों ने बनाया है। अभी तक बता दूं कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं 1,28,00,000, नंबर ऑफ इनवॉइस उस पर लोड हुए हैं 1,195 करोड़ और 72.22 लाख करोड़ का पेमेंट अभी तक हो चुका है GSTN पर। यह आयुष्मान भारत, ये क्या है? ये भी भारत के टेक्नोलॉजी के लोगों ने बनाया है। उस पर 14.88 करोड़ कार्ड इशू हो चुका है और 1,74,000 1.74 करोड़ हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व हैं। डिजिटल पे नेशनल स्कॉलरशिप, अभी तक हम लोगों ने लगभग 4 करोड़ विद्यार्थियों को 13,117 करोड़ रुपया भेजा है। और किसानों की बात बहुत होती है तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने बनाया है ई-नाम मंडी। आप पंजाब से आते हैं, 1,000 मंडी उसमें कनेक्टेड हैं। 1.7 करोड़ फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं। 1.58 लाख ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं और व्यापार करते हैं आराम से बैठकर। वो कोई कानून उसकी चिंता नहीं करते, सीधा डिजिटल मामला चलता है। तो ये मैंने आपको कुछ मोटी बातें बताई कि डिजिटल इंडिया से 5-6 वर्षों में देश को हमने कैसे बदला। पिछले साल कोरोना आया, फिर वो दस्तक दे रहा है। और रतनलाल जी और सांपला जी, कोरोना में जहाज बंद, रेल बंद और सड़क मार्ग भी बंद, लेकिन देश को चलाने का काम मेरे तीनों विभाग कर रहे थे। IT विभाग, कम्युनिकेशन संचार विभाग और डाक विभाग। मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन, IT, इंटरनेट, ये सब जो आपने नए नए प्रोडक्ट्स देखे, कोविड सावधान देखा, बाकी देखा, ये सब हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम देखा। डिजिटल बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे थे, पढ़ाई नहीं रुकी। और अगर मैं कानून मंत्री की टोपी पहनूं तो लगभग 72 लाख केसेस की सुनवाई हुई है थ्रू ई-कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये बातें मैंने इसलिए कही कि किस तरह से हमने देश को बदलने की कोशिश की है पिछले 5.5-6 वर्षों में। अभी अजय साहनी चर्चा कर रहे थे हमारे CSC की, आप कर रहे थे। ये CSC क्या है? CSC एक डिजिटल खिड़की है। और मैं हमेशा मानता हूं कि डिजिटल इंडिया को अगर सफल होना था तो डिजिटल इंडिया को एक मास मूवमेंट बनना जरूरी है। तो ये हमारे बच्चे हैं, गांव-गांव में फैले हुए हैं। लगभग ये 75,000 थे जब हमारी सरकार थी, अब उनको हम 4 लाख पर ले गए। ये आपके पासपोर्ट बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल स्किलिंग करते हैं, रेलवे का टिकट काटते हैं। लगभग 12 लाख बच्चियां काम करते हैं, लगभग 70,000 महिलाएं। इस बार जो 26 जनवरी की परेड थी, अभिषेक बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा जो IT विभाग का टैब्लो लगा था, तो हमने कहा 2 बेटियों को खड़ा करो उस पर जो एग्जैक्ट काम कर रही, और उन्होंने परेड किया राजपथ पर, ताकि देश देखे कि सब क्या काम करती हैं। मैं सांपला जी आपसे आग्रह करूंगा, रतनलाल जी आपसे भी आग्रह करूंगा, कभी आप लोगों को CSC विजिट करना चाहिए। और मैं चाहूंगा अजय इन लोग की व्यवस्था करें, ये लोग जाके देखें। अभिषेक देखो तुम, यू प्लीज शो इट टू देम कि ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं। अब मैंने इस कोरोना काल में जब था बंदी, तो हमने कहा कि तुम लोग कुछ ई-मार्केट स्टोर खोलो। तो एक हमारी बेटी थी, उसने समोसा बनाना शुरू किया और डाल दिया इस पर, तो गांव में बिक्री शुरू हो गई। उसको मुझे बताया गया कि उड़ीसा में एक पर्व होता है, उसमें एक साड़ी एक विशेष प्रकार की लोग पहनते हैं, उसने उसको बेचना शुरू किया। You'll be surprised to know, सांपला जी, they earned a cool profit of 150 करोड़। समझ गए आप जी? इसके माध्यम से ये जो ई-कॉमर्स है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत से बच्चियां तो अब फ्रिज भी बेच रहे हैं, आपके बाकी काम भी कर रहे हैं।
और मैंने कानून मंत्री के रूप में उनको एक अवसर दिया, चूंकि आप इसका उपयोग करने चाह रहे हैं, कि फ्री लिटिगेशन एडवाइस मिलना चाहिए। मतलब कोई बहू परेशान है अपनी सास से या घरेलू हिंसा से, किसी किसान को उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, अवसर नहीं मिलता, किसी मजदूर को उसकी पेमेंट नहीं मिलती। 7 लाख लोगों ने एडवाइस लिया है, वकील बैठते हैं समय पर। तो ये आंदोलन इस तरह से बन जाता है। तो आपने इसका प्रयोग किया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक बदलाव का अवसर है, इसको और आगे बढ़ाइए। और हमारे जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि डिजिटल इंडिया बदलाव का कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर इंडियंस, ट्रांसफॉर्म इंडियंस। तो ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया सिर्फ मेरा विभाग नहीं है, हमारा विभाग तो सहयोग कर देता है, लेकिन डिजिटल इंडिया आज देश के लोगों को सशक्त कर रहा है। तो ये संतोष होता है कि हम लोग देश के बदलाव के लिए कुछ काम कर पाए। तो इससे नीचे तक, और मैं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने CSC को चुना है। CSC के माध्यम से जो बच्चों ने काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, तो आपके इस पोर्टल को बहुत सफलता मिलेगी। तो मैं आपका, सापला जी, आपकी टीम का बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आपने यशस्वी काम किया है और आगे बढ़े। और मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि जो रतन लाल जी ने कहा, जो सापला जी ने कहा, दलित एम्पावरमेंट का मैं स्वयं बहुत प्रशंसक हूं, समर्थक हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो उस पर बहुत ही विस्तार से काम करते हैं। जैसा बताया, जो सारे कार्यक्रम हमारे सरकार के हैं तो दलित एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही सक्रियता से चलते हैं। तो मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि इन लोगों को पूरा सहयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much, sir, for those thought-provoking words. Well, we'll now have a quick round of interaction with the press. For that, I would request Shri Jaideep Bhatnagar, Principal Director General of PIB, to moderate the session. Sir. देखिए पत्रकार मित्रों, ये कार्यक्रम है सापला जी का, ठीक है, और कटारिया जी का। अब वाले मेरी बात सुनिए। आप हमसे तो आप बातचीत करते रहते हैं, खूब करते रहते हैं, तो हमसे आराम से बात करिएगा। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर रखिए बस। चलिए, प्रश्न दे दो। ये लीगल मैटर्स, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मतलब किसी को कोर्ट में जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उस चीज़ों के भी मतलब द मैटर ऑफ द, देखिए लीगल एड की सुविधा हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। पोर्टल में तो ये रजिस्टर कंप्लेन करेगा ना। अभी तो इतना विस्तार से बताया सापला जी ने। ऐसे हैं कि जो कमीशन में कंप्लेंट आती है उसमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी केस कमीशन में आता है वो सीधा आता है और उसकी कंप्लेंट सुनने के बाद व्यक्ति को, जो दूसरी प्रतिपक्ष पार्टी होती है, उसको बुलाकर आमने सामने बिठाकर उसका समाधान होता है। ये कोर्ट का मैटर नहीं होता, कमीशन का मैटर कोई भी। जी चलिए। They are satisfied today, looks like. Yes. Looks like. चलिए। Thank you, sir. Myself, Jaswinder Bitta from Prime Minister TV, Canada. Honorable Minister साहब, Honorable Chairman साहब, ये समझा जाए कि जो पहले पेडेंसी थी, जब आप आए थे तो 60,000 एप्लीकेशन थी आई थिंक, तो इसमें एक तो टाइम बाउंड हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे कोविड मंत्री साहब ने बोला कि कोविड की तरफ से जैसे आने जाने का समय बचेगा और पीड़ित को इंसाफ मिलने में सुनिश्चित होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया का जो थीम है वो भी उसमें एडजस्ट होगा या उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आधी चीज़ें तो आप ही ने बता दी कि डिजिटल का भी फ़ायदा होगा, कोविड का भी फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें तो फ़ायदे तो आपने ही बता दिए। मगर जहाँ तक पेंडेंसी का है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट बाई पोस्ट आती थी या कोई बाई हैंड दे के जाते थे,
तो कागज इधर उधर हो जाते थे, उसका शायद समाधान नहीं निकलता था। अब जो भी पोर्टल पे आएगी वो ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, उसके अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। इसलिए लोगों की सेटिस्फेक्शन पहले से ज़्यादा होगी, ये हमारी आशा भी है। आप धन्यवाद। एक मिनट। Sure, sir. Sure. Ji. And before we end, I would request Dr. Smita Chaudhary, Joint Secretary of the Commission, to offer a formal vote of thanks. बाबा साहब की 130वीं जयंती में आज NCSC भी डिजिटल हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों को धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर इस पोर्टल को लॉन्च किया। आपकी पहल व आपके मंत्रालय के सहयोग से ही आज का ये शुभारंभ हो सका है। अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी समस्याओं को सीधे ऑनलाइन रूप में आयोग तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल कारगर सिद्ध होगा। माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति व आशीर्वचनों से हम सब का मनोबल बढ़ाया है। मंत्रालय के सहयोग से ही इस पोर्टल का लॉन्च आरंभ हो पाया है। हमारे अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी इस ऑनलाइन पोर्टल के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने तो कार्यभार ग्रहण करते ही उपरोक्त को साकार करने के लिए सारे कदम उठाए और समय समय पर हम सभी को मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण इतने कम समय में ही ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है। मैं NCSC के सभी माननीय सदस्यों, श्री अरुण हल्दर जी वाइस चेयरमैन, श्री सुभाष परधी जी और डॉक्टर अंजू बाला जी को भी इस प्रणाली में सुदृढ़ बनाने में जो अपने सुझाव दिए हैं आपने, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बिसाग N की टीम जिसने ये पोर्टल डिज़ाइन किया है, उसको बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। माइटी के सभी अधिकारी जिनके सहयोग से ये पोर्टल बन पाया है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मीडिया के सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ तथा उनसे एक अनुरोध भी करती हूँ कि इस पोर्टल की सूचना कृपया अपने माध्यम से सभी लोगों तक दूर दूर तक प्रचार करें इसका, जिससे अनुसूचित जाति के लोग इसका उपयोग कर सकें और इसका लाभ पा सकें। PIB के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि उनकी सहायता के बिना आज का ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। नेशनल मीडिया सेंटर के अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ। आखिर में अपने सचिव और हमारी NCSC आयोग की टीम को, जिन्होंने अथक प्रयास किया है, उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, with that we come to the end of this program. Please join us